नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन खुराना है। आज 15 जून 2020 है और हम सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। हर एक स्कूल अपने विद्यार्थियों को घर से ऑनलाइन स्टडी करवा रहा है, पर जो एक बड़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि बच्चों के एग्जाम कैसे लिए जाएं, बच्चों के टेस्ट कैसे लिए जाएं। आप जानते हैं कि जब तक बच्चों के टेस्ट नहीं लिए जाते तब तक बच्चे अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं और टीचर्स को भी इवैल्यूएशन का पता नहीं चल पाता है कि कौन सा स्टूडेंट घर पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट्स को याद कर रहा है या नहीं कर रहा। तो टेस्ट या एग्जाम होने बहुत जरूरी है, बट लॉकडाउन में हम सभी हेल्पलेस हैं, लाचार हैं। बट इन सभी का एक सोल्यूशन है, वो है कि हम अपने स्टूडेंट्स के ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं गूगल फॉर्म के द्वारा। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है पर बड़े ही इफेक्टिव ढंग से इनिशियली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देकर हम अपने बच्चों के क्लास टेस्ट या फिर उनके यूनिटरी टेस्ट ले सकते हैं। ये टेस्ट हम कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप मेथड्स में बताऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का बेनिफिट उठाएं ताकि आप लोग भी अपने स्कूल के ये जो टेस्ट हैं, क्लास टेस्ट हैं, यूनिटरी टेस्ट हैं, वो करवा सकें। लगभग पहला आधा वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश में ये वीडियो देख के सीख सकते हैं कि हम एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं। और जो हिंदी में कंफर्टेबल है, जो बाकी का हाफ वीडियो है वो हिंदी लैंग्वेज में है ताकि आप हिंदी में उसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये देखते हैं गूगल फॉर्म्स में हम अपने टेस्ट या फिर एग्जाम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। This is the laptop's window of mine, and I have opened one. You can say that one browser. I am using Opera. You might be using the Chrome. Getting this upper side, if you see, that is Opera is open, and you may open the Chrome also. Is it fine? So, yes, sir. We'll open Google new Chrome window, and here in the Google bar, we'll write down Google Forms. We'll click on enter. Let us see what comes. Here I'll get the window Google Forms free online service for personal use. Google Form create, and so this is required. Now see, I have made my cursor in a visible format. It might be visible to you, right? So we have to click on the Google Forms here. Understood, everybody? I'm clicking here. Yes, I'm clicking here. Let us see windows open. See, create beautiful forms. First is personal, second is business. Let us open the personal one. Go to Google Form. Go to Google Form. Here we have to click. We are clicking. Let us see which window appears. Now a lot of options are open. That is blank form, blank quiz, contact information, RSVP, party invite, or whatever. All right. And downside, some forms are there which are visible. 8th class science, maths 8th class. These are the default forms which I prepared. But once we'll leave those, okay? I'm clicking on the blank form, which is the first option. We'll click on the blank form, first option, and see which window comes in front of us. So here it is in front of us. Untitled form. So we need to give the name to this form first. Okay. And where the name is to be given, you see this area is there where it is written untitled form. Is it visible? Yes, sir. Yes. So we'll write here, suppose we have to conduct the test of 9th class social studies. Fine. Now we'll write down how to create the quiz or how to create the unitary test in the multiple choice questions format. Untitled form, I'll write by default the same name is coming, but I'll remove this description and I'll write down here Rigveda International School. Rigveda International School I have written. Anybody can, whenever anybody want to ask anything, can unmute and can ask the question. So here is the form description. Here I'll write down. Yes, sir. Excuse me. Yes, sir. Please ask.
Sir, in the extreme left corner where you have written 9th class SST, Yes, sir. same window came here where you have replaced it with the Rigveda International School. So it is means compulsion for us to write Rigveda International School on the answer. Yes, yes, let me reply. This is a compulsion because when this form will go to the students, upper side which 9th class social study we have written, that is for the saving purpose in your Yes, sir. laptop. Getting? With this name, file will be saved. But where downside you have written Rigveda International School, this form will be visible with the student. When link will go to the student, when student will click on the link, that 9th class SST will not be visible. Rigveda International School will be visible. Is it clear? Right, sir. So now we are writing in the form Yes, sir. description. We are writing in the form description. So that is unitary test. Column we can write down here. It is June 2020. Date has come. Then we can write down the class, 9th class. Subject is social study. And marks are just to show. Initially, we'll create the unitary exam only of 2 questions, right? That means of 4 marks ones, 2 marks per question, 4 marks. So I have written only 4. Clear till here? Yes, sir. Yes. Alright. Then email address is visible to you. Valid email address. This we need not to fill. This is for the student. Now untitled questions we are going. We are going to untitled question. First question we are creating now. But remember, we'll not start from the very first question because we need to take certain information from the student, like student's name. So we will write in the first question student's name. Okay, and see here the type of questions are there. My cursor is visible. Yes, sir. We'll click on here and we'll see a lot many questions are appearing. A lot many options are appearing. The first option will select here short answer. Student's name, short answer. Then we have to move towards the next question. For next question, you are seeing one icon here. Visible? Yes, sir. We'll click on this plus icon. Next question. That is father's name. Again, we'll go for. Please repeat the previous one. Short answer. Yes, just we have to click short answers, na? Yes, we have to click on the pop down list. Here many options are there and Yes, we'll sir. click on the first option, that is short Yes. answer, and that is selected, right? Like in father's name we have selected the same option. Right. Third question also will be similar. Now we want to ask class. Suppose we want to ask subject from the student also. Okay, we have written here subject. In case of multiple choice, we'll select the short answer. We'll click on plus. Then class and section. Again short answer. By default it is being selected. Then contact number. Sometimes the students are changing the number. So here we'll get the detail of the contact number also. You will get the contact number of all the students. Till here, is it clear to everybody? Sir, like short answer text, this one contact number, this is we are getting for our reference, and where we have to type question. Yes, definitely. I'll show you that. I'm asking till here everybody is clear? Okay, this is the first page which we are getting just for the information purpose, so that on the next page we will type questions, right? There is only single page. Okay. And these are the questions only. Right. And instead of writing multiple choice questions, we are changing it to short answer type questions. Getting? So now when Yes, next sir, the person will contact type number, class, and the general salutation, that is student's name, father's name, subject, class and section, contact number. I think so sufficient. For any other information you want to fetch from the student?
For sample, Sir, it's okay. up to here Sample, it it's is okay. Fine. So now we are writing the first question. We are writing the first question, multiple choice question. Pick any social study question which I must create as a multiple choice question. Any question, sir? Do you think India is a democratic country? Let us have the 4 options, sir. Any such question which may have the 4 options. Sir, which of the following are the democratic countries? Very good. Which of the following is the democratic country? Okay, we want only one option. The student must take some writing country only, is it? Not countries. So option 1, Jastinder sir, please speak. Sir, India. Now, when we have to create the option, see here is add option or add other. This option is visible. Add option Yes, or sir. add option or add other. We have not to click on add other. We have to click on add option. I will click on add option. So next option will come India. Suppose, sir, any other country which is not democratic? Sir, just we will go with all of the above option. So Pakistan, PAK. Fine, it's fine. Pakistan. Then add option Yes. Sir, USA. USA, and add option is that is all other. All of the above. Yes, sir. All above. Fine. This is the first question. Now we have to select the second question. Okay. So where we'll click? We'll click on this plus option. Right? Got everybody? So now it is the second question. How many percentage do we have forests? 23%. Option 2, sir. 33. 33%. 33%, sir. Option 3. Sir, go for 44. 44%. 44%, sir. And then 55%. Yes, sir. Yes, sir. Right answer is 33%. Right, sir. Right. It's okay. So this is it. Now our questions are created. Right? Questions are created. Now Yes, sir. we have to manage the answer sheet and we have to give the marks to the questions. Clear here? Now see where to go. Yes, sir. Where to go? We will go to the setting. Where will go? This visible, Setting. everybody? Yes, sir. Yes. Go to the setting. We have clicked on the setting, and here we have clicked on the. We'll click on the quizzes. Third option is there. First option is general. Second option is presentation, and third option is a quizzes. Quizzes. Click on the quizzes, and we'll click here. Make this a quiz. We'll click here. Make this a quiz. Getting everyone? Getting Yes, everyone? Next is release date quiz Yes, option. sir. Immediately after each submission, you can click here. Respondent can see if you track down this, scroll down this list, correct answer, point value. Means respondent means student can see mixed questions, correct answers, and point values. This is it. We have selected it and we are clicking on save. We are clicking on save. So this feedback is saved. Now we'll go to the question where we have to create the answer. Here we have to create the answer. We will click anywhere at the blank space. Like here blank space is there. We'll click here. Now if you'll see downside here, answer key has come. The option of answer key has come. Right? Everybody visible? Yes, sir. Yes. We'll Yes, click on the sir. answer key. And then the answer was all above. Was it the answer? And here are the points. Yes, How sir. many marks do we want to give to this question? Suppose we want to give 2 marks. We have given 2 marks. Yes, sir. And we have given 2 marks, and we have clicked on all above. The right answer is this, and then we have clicked on done. Means Yes. this question's answer copy we have selected. Answer Yes, we have managed. Then we'll click on the yes, sir.
Second question, in the blank space, we'll click here. When we'll click here, as sir told, 33% is the right answer. We'll click on the third. First of all, we'll have to click on answer key. It is mandatory. Click on answer key. Then click on 33. Then here give the marks, increase the marks. 2 marks. We'll click on done. Yes, sir. Clear it? Yes, sir. Now let us see Yes, in the sir. heading now what comes. Everybody see here, total points automatically these are coming here 4. Right everybody? So this paper is of 4 marks. Rigveda International School Unitary Test June 2020, 9th class social study. Here the date can also go, email address is there. The email address we have not to fill, student has to fill. Then student's name, father's name, subject, class and section, contact number, and then 2 questions. This way the Right, test sir. is generated. Now certain more options are there. Our test is generated now. Means which test we had to send to the students, that is generated now. Answer sheet is answer copy is also generated, and question paper is also generated. Due information which we had to take from the student, that is also generated. Now to make it attractive, what to do? Make it attractive, what to do? Here, see everybody, this is the first option. Everybody visible this option? I have a question that like अब तक हमने क्या किया है? I want to know. First we have created a question paper जिसके First we अंदर have we are created a getting form. First we have created a form. form. Then we have saved the form with the name, the class and subject. Right, sir. Third, we have written the salutation. Right. Salutation means the information. Correct, sir. Fourth, we have collected the student's information, student name, father name, Yes, sir. subject, class and section. Yes, sir. Next, we have written the question paper. हाँ जी. Yes, sir. Next, we have managed the answer keys and given the marks to the questions. Sir, that's what my question is. Like we have prepared the question paper, and then we are preparing the answer key side by side, right? So when we save it, so it will be saved differently. मतलब answer key and the question paper, these will be saved differently, na? We will send the question papers to the student. Yes. Let me tell you. Let me elaborate you. Yes, sir. Computer will remember the answers. Only the questions will go to the student. When a student will tick the question, automatically the software will tell the student this is the right answer or this is the wrong answer. Means marks are to be given or not to be given. Answers will not be visible to the students. Query Okay, visible, sir. madam? Yes, sir. Okay. Now I was telling you that how to make the form a bit attractive. This was the first option, which is called customize theme. We had clicked on this option, then theme options came. We have to choose the image. Here many descriptions are there. Work and school, suppose we have selected. In work and school, we will select which theme we like. Like suppose we have selected this pic. We'll click on insert. See, the pic will be visible on the form. Is it visible to you people? Yes, sir. So it is visible. Theme is customized. I will cross here now. I have crossed it. Theme is already there. Got everyone? Yes, sir. Yes. Now certain more options I'm going to tell you. See, I'm going to click on setting. There certain options are necessary to be done. This is the setting bar. I'm clicking on setting. Let us see which window appears. I have clicked on setting. So in setting, as we had already used the quizzes option, here I told you that enable the make this a quiz. It is mandatory. Otherwise answer key will not be selected. When you will click on quizzes, you will enable it, then only answer key will be selected, otherwise not. Now the first option is general option. General. In that,
is there collect email addresses. Collect email addresses. So it is very important information, very important. Whenever you might be creating the Google form, this might not be enabled. By default it is like such, but we need to click here. मोहित लिखेगा mohit@gmail.com. अगर उसमें राहुल है तो राहुल लिखेगा rahul@gmail.com. उसमें कोई साहिल है तो साहिल लिखेगा sahil@gmail.com. ठीक है, ये क्यों बहुत जरूरी है, ये अभी लेटर में आपको बताऊंगा जब रिस्पॉन्स कलेक्ट करेंगे. रिस्पॉन्सेज के लिए इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से ऑप्शन इट इज. कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस. अब रिस्पॉन्स रिसीव जाए कि नहीं जाए, हमने बच्चे ने टेस्ट दे दिया है, उसको पता चले कि नहीं चले कि उसने टेस्ट दे दिया है, इसको हम डिसलेक्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि ये ईमेल आईडी पे जाएगा, हम नहीं चाहते ये. इसको डिसलेक्ट करें, रिसीट को डिसलेक्ट करें, सिर्फ कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पे क्लिक करें, सिर्फ कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पे क्लिक करें, ये ऑप्शन पे क्लिक ना करें. डोंट क्लिक ऑन दिस. आगे है रिक्वायर्ड साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स. जैसे मान लीजिए साहिल के पास मोबाइल है, साहिल ने अपने मोबाइल से हमें रिस्पॉन्स भेज दिया, he has done the question paper, but we want that he is able to send only once, so we will click here limit to 1 response. क्योंकि अगर हम ये नहीं क्लिक करेंगे तो साहिल ने अपना एक पेपर भेज दिया, 10 मिनट बाद दूसरा पेपर भेज दिया, 20 मिनट बाद तीसरा पेपर भेज दिया, तो भेजता रहेगा. अगर हम चाहते हैं कि उसके मोबाइल से सिर्फ एक ही पेपर आए, तो that will do it limit to 1 response. Getting everyone? Yes sir. All right. Respondent can edit after submit. बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो एडिट कर पाए, तो ये हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये भी सिलेक्ट नहीं करेंगे. Is that clear everyone? हमने सेटिंग में जाके हमने सेटिंग में जाके जनरल में 2 ऑप्शंस टिक किए हैं. पहली है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, सेकंड है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स. ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, तो बड़े ध्यान से टिक कर देना इसको. चाहे गूगल फॉर्म ओपन होते ही कर देना, एंड तक वेट करने की जरूरत नहीं है. दूसरा है प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है हमें. लेट इट बी इंटेक्टेड, लेट इट बी इंटेक्टेड, नो नीड टू टिक एनीथिंग. थर्ड इज क्विजेस. क्विजेस में हमने पहले ही ये ऑप्शन टिक कर ली है, मेक दिस ए क्विज, तो ये बहुत जरूरी है, मेक दिस ए क्विज. नाउ आई एम गोइंग क्लिकिंग ऑन सेव. मैं इसको सेव पे क्लिक कर रहा हूं. आई हैव क्लिक्ड ऑन सेव. नाउ मेरा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रेडी है बच्चों को भेजने के लिए. क्वेश्चन पेपर इज कंप्लीटली रेडी. नाउ आई कैन सेंड इट टू द स्टूडेंट. अब बच्चों को भेजना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, बड़े ध्यान से देखिएगा. Here you are watching this option send. Is it visible to everybody? Coordinators? Yes sir. Yes sir. Clicking on send. I'm clicking on send. Send पे देखिए ये 3 ऑप्शन है. Send via लिखा हुआ है, send via. फर्स्ट इज ईमेल. हम बच्चों को ईमेल पे नहीं भेज रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम बच्चों को टेलीग्राम पे भेज रहे हैं, ईमेल पे नहीं भेज रहे हैं हम लोग. Isn't it? Yes sir. सेंड वाया ईमेल हमने नहीं करना है, हमने सिर्फ सेंट्रल ऑप्शन उठानी है. ये है लिंक की ऑप्शन. आई एम क्लिकिंग ऑन दिस सेंड वाया लिंक. तो ये लिंक आ गया हमारा कि बच्चा इसको लिंक को क्लिक करे और उसके पास सीधा फॉर्म खुल जाए. द स्टूडेंट विल क्लिक ऑन द लिंक एंड द फॉर्म विल बी ओपन. अब ये यूआरएल बहुत बड़ी है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ शॉर्टन यूआरएल पे. यूआरएल अपने आप छोटी हो जाएगी, इसको यूआरएल कहते हैं. देखिए यूआरएल छोटी हो गई है. तो लिंक भेजना है हमें. मैंने यहाँ पे क्लिक किया कॉपी लिंक पे. मैं लिंक को कॉपी कर रहा हूं अभी, टेलीग्राम पे भेजने के लिए, व्हाट्सएप पे भेजने के लिए. आई हैव क्लिक्ड ऑन कॉपी. गेटिंग? अब मुझे भेजना है टेलीग्राम पे. हालांकि मैं अभी आपको एक बार व्हाट्सएप पे भेजना सिखा रहा हूं, क्योंकि व्हाट्सएप मेरा बाय डिफॉल्ट ओपन है. आप उसको टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, क्योंकि एक बार लिंक ही आ गया तो लिंक कहीं भी भेजा जा सकता है. तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ. व्हाट्सएप में मैं जो हमारा एक स्टाफ का ग्रुप बना हुआ है, स्टाफ का ग्रुप मैंने ओपन किया. स्टाफ के ग्रुप में मैंने यहाँ जाके अपना लिंक जो है, आई पेस्टेड द लिंक. राइट
Now we need to give the description. अब स्टूडेंट के लिए हम एक प्रॉपर मैसेज लिखेंगे. सबसे पहले क्या है ये? School's name will come. Then after what it is unitary test. Class was, which class was there? 9th? Yes, sir. Class 9th. Subject social study. We can write here fully also social study. Then after date, on which date this test is there? Suppose it is today, 15th June 2020. Then after, what is the timing? Time is 10 o'clock suppose. Duration. What is the duration of the test? 1 hour. How many marks? This test contains how many marks? Now we have made it of 4 marks. Let it be 4 only. 4. Right? Complete information is there. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. Yes, madam, please. सर जो टाइम लिमिट हमने बाउंड की है, हम इसको वहाँ पे नहीं लिख सकते लाइक कितने टाइम में ये सबमिट होना चाहिए टेस्ट गूगल फॉर्म में? वहाँ पे ऑप्शन है. अभी जब सबमिट का ऑप्शन Yes. आपको दिखाऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको बताऊंगा मैं कि वैसे बाय डिफॉल्ट नहीं है कि 2 से 3 बजे तक ओपन रहेगा ये, बट हम रिस्पॉन्स को रोक सकते हैं. हमने 11 बजे का टाइम दे दिया, हम 11:05 या 11:10 पे ये बंद कर सकते हैं बच्चे से रिस्पॉन्स लेना. तो हाउ टू डू दैट, आई विल शो यू दैट. ओके, वंस लेट अस सेंड, प्लीज क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक. Sir, if you're making this test on laptops, then how will we send from laptops to WhatsApp groups or Telegram? We are using Telegram on phones. Madam, once that I'll let you know. For that, the different session is required. That I'll let you know about that also. See, in your staff group, already that form has come, and please attempt this test. Everybody, attempt the test. सिर्फ अपना नाम लिख के @gmail.com लिख दीजिएगा. प्लीज डू इट. पर लैपटॉप पे भी देखिए, ये देखिए रिस्पॉन्स विंडो है ये वाली. ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर. दिस इज द क्वेश्चन पेपर जो हमने बनाया था अभी. ऑलराइट. Yes, sir. बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन के साथ ही और रिस्पॉन्सेज भी. रिस्पॉन्सेज, मैंने रिस्पॉन्स पे क्लिक किया तो ये एक ऑप्शन खुल गई है. 5 रिस्पॉन्स आ चुके हैं अभी तक मेरे पास, और ये 3 ऑप्शन है रिस्पॉन्सेज में, समरी, क्वेश्चन एंड इंडिविजुअल. मैंने समरी पे क्लिक किया हुआ अभी. बाय डिफॉल्ट समरी पे ही क्लिक रहता है. मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा Yes, हूँ, sir. तो देखिए अब तक कौन कौन अटेम्प्ट कर चुका है. जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये रिस्पॉन्सेज आते जा रहे हैं सारे. ये सेम लिंक जो है आप टेलीग्राम में कॉपी कर सकते हैं, सेम लिंक आप ईमेल में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं. तो देखिए टाइम भी आ रहा है साथ में. जैसे जैसे कोई भी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है तो हमारा टाइम आ रहा है. आपको चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है. सीधा देखिए रिस्पॉन्स हमारे पास बच्चे के आंसर आ रहे हैं. टाइम आ रहा है, बच्चे का नाम आ रहा है. ये देखिए, ये जी आ गया, ये पायल आ गया, ये कनु आ गया. शायद यहीं से आप बच्चे का जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, या इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वर्ड के अंदर और अपने मार्क्स बच्चे के जनरेट कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं. अभी तक कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं मेरे पास? 11 रिस्पॉन्सेज आए हैं, देख रहे हैं आप. नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूं, जो इसी गूगल फॉर्म को अभी आपने सेव कैसे करना है, क्योंकि एक गूगल फॉर्म तो बन गया. अब आप अगर 5 क्लासेस के एग्जाम ले रहे हैं तो आपके मोबाइल में 5 गूगल फॉर्म होने चाहिए. तो वो सेव जाके कहाँ होते हैं? अगर आपने उसको देखना हो और उसको कुछ एडिट करना हो तो वो कहाँ जाके करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक 18 रिस्पॉन्सेज आए हैं. इसी तरह आपको स्टूडेंट्स के सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आ जाएंगे. किस बच्चे ने टेस्ट दिया, किस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया, वो आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी. विच स्टूडेंट हैज गिवन द टेस्ट, यू विल हैव द मार्क्स ऑफ दैट स्टूडेंट आल्सो. आपके पास उस बच्चे के मार्क्स आ जाएंगे. यहाँ पे आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, या यहाँ से देख के लिख लेना है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?
तो अब सर ये Yes. मार्क्स ये स्कोर्स कहाँ पे आएंगे? आपने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बनाया था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बना था नीचे, ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। पेपर के यहाँ साथ ही रिस्पॉन्सेज का कॉलम है, रिस्पॉन्सेज। आप रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये 3 ऑप्शंस आती हैं, समरी, क्वेश्चंस, इंडिविजुअल। बाय डिफॉल्ट ये समरी पे क्लिक होता है, समरी पे क्लिक होता है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए कर्सर कहां पे है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे स्कोर्स आ गया है। स्कोर्स में सबकी ईमेल आईडी विजिबल है, उसके अगेंस्ट उसके मार्क्स विजिबल है, उसका टाइम विजिबल है। तो आपको ये Got it. चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस बच्चे की ईमेल आईडी से बच्चे का नाम पता चल रहा है और उसके स्कोर पता चल रहे हैं, कब उसने टेस्ट दिया वो ये पता चल रहा है। आप कॉपी पेस्ट करके अपने वर्ड में रख सकते हैं, वर्ड फाइल में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। आपके पास सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ गया है यहाँ पे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कोई भी टेस्ट। गेटिंग एवरीबॉडी? Got it. Yes, Got sir. it. अब नेक्स्ट समरी शीट में आपको जो बता रहा हूं दैट इज इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल जो 20 रिस्पॉन्स आए हैं मेरे पास अभी तक, अब 20 बच्चों की मैं आंसर शीट देख सकता हूं, कहां पड़ी हुई है, वो इंडिविजुअल में पड़ी हुई है। जो 20 बच्चों की आंसर शीट है वो मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। देखिए ये रहा पहला टेस्ट जसपिंदर सर ने दिया था, 1 of 20। ये नीचे जसपिंदर सर की आंसर शीट पड़ी हुई है मेरे पास। ईमेल एड्रेस j@gmail.com, स्टूडेंट नेम जसपिंदर, फादर्स नेम जी, सब्जेक्ट एस, क्लास एंड सेक्शन 9D, कॉन्टेक्ट नंबर उन्होंने लिखा है, और ये क्वेश्चन दिया उन्होंने, उसका आंसर दिया, ये क्वेश्चन दिया, उसका आंसर दिया। ये इंडिविजुअल आंसर शीट यहाँ पे पड़ी हुई है। उसी तरह अनिल सर आ गया, फादर नेम आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, और ये देखिए ये रॉन्ग क्वेश्चन है तो रॉन्ग आ गया, जो सही क्वेश्चन है वो सही आ गया। अगर ये आंसर खाली छोड़ा होता तो खाली आ जाता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes. अब आगे क्या है, मैं दोबारा क्वेश्चन पेपर पे जा रहा हूं, एक बार चेक कीजिएगा। दोबारा क्वेश्चन पेपर पे जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन में आ गया हूं जहां पे हमने क्वेश्चन पेपर बनाया था, ठीक है, Yes, sir. जहां पे हमने क्वेश्चन पेपर बनाया था। ऑप्शन कौन सी बताने जा रहा हूं? ऑप्शन ये बताने जा रहा हूं कि हमने जो क्वेश्चन बच्चे को दिए हैं, हम ये चाहते हैं कि बच्चा मैंडेटरी उसको सॉल्व करे, ऐसा ना हो कि वो उसको खाली छोड़ दे, वो सॉल्व करे ही करे, खाली ना छोड़ पाए कोई भी ऑप्शन। तो मैं अपने पहले क्वेश्चन में गया, हालांकि स्टूडेंट नेम तो मेरी एक इंफॉर्मेशन थी, बट है तो बच्चे के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन ही ना। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड की, रिक्वायर्ड, अगर मैं इसको डीसिलेक्ट करता हूं तो जरा साइड पे क्लिक करके देखें या ऊपर, तो देखिए यहाँ पे स्टार नहीं आ रहा, स्टूडेंट नेम के साथ स्टार नहीं आ रहा ना। Yes, sir. स्टार नहीं आ रहा का मतलब बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ सकता है, बट मैं नहीं चाहता Yes. बच्चा ये क्वेश्चन छोड़े, मैं रिक्वायर्ड पे क्लिक करूंगा। तो अब ये क्वेश्चन जब आप कहीं पे साइड पे क्लिक करते हो आप, तो आप चेक करो कि वो क्वेश्चन के साथ स्टार लग गया है। स्टार का मतलब वो Yes. बच्चे के लिए मैंडेटरी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बच्चा छोड़ नहीं पाएगा, सबमिट नहीं होगा आंसर जो हम सबमिट करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह जैसे ये Right, पहला sir. क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि बच्चा इसका आंसर जरूर दे, खाली ना छोड़े, तो ये रिक्वायर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड अगर नहीं सिलेक्ट करोगे तो बच्चा ये आंसर छोड़ भी सकता है, बट अगर हम रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे तो बच्चा अब ये छोड़ नहीं सकता। ये ऑप्शन Right. क्लियर है जी सबको? Yes, sir. ऑलराइट, अब हमने ये देखना है कि हमारा ये फॉर्म जो है वो सेव कहां जाके हुआ है, ताकि हम उस सेव वाली जगह पे हम जो है और भी फॉर्म बना सके, क्योंकि ये तो एक क्लास का एक टेस्ट हुआ यूनिटरी 1, हमने इसी सब्जेक्ट का यूनिटरी 2 भी लेना है, हमने साइंस का भी लेना है, हमने इंग्लिश का भी लेना है। अगर एक टीचर जीके और इंग्लिश पढ़ा रहा है उसने जीके का भी लेना है ना। तो ये सेव कहां पे होना चाहिए वो देखना है हमें। और उससे भी पहले कि हमने बच्चे को टाइम दिया 10 बजे से लेके 11 बजे तक, अब बच्चे को टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे कि बच्चा 10 बजे एग्जाम शुरू करे और 11 बजे खत्म करे, रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो बच्चा शाम तक जब मर्जी उसको लेके बैठा रहेगा, नहीं तो अपने फ्रेंड को बताएगा कि तू पहले कर ले, बाद में मुझे बता देना, क्योंकि आंसर तो आ ही जाते हैं साथ के साथ। ऑलराइट, तो उसके लिए हम दोबारा रिस्पॉन्सेस पे जाएंगे।
तो पहली बात कि टेस्ट 10 बजे शुरू कैसे होगा? हम ये चाहते हैं कि बच्चा 10 बजे टेस्ट शुरू करे, बट हम ये भी जानते हैं कि बच्चा देखो अपने मोबाइल को ओपन करने में, उसमें अपना नाम भरने में, फादर नेम भरने में 10 मिनट के करीब लगाएगा। तो अगर 10 बजे का टेस्ट है तो मैं 9:47-48 पे उसको लिंक भेजूंगा, जो लिंक मैंने स्टाफ ग्रुप में आपको भेजा ना अभी। यस सर। कलर और डेट शीट तो मैं पहले ही दे दूंगा, एक हफ्ता पहले ही दे दूंगा। डेली का रिमाइंडर भी दे दूंगा सुबह 9 बजे कि बेटा 10 बजे पेपर है, तैयार रहना। बट जो पेपर स्टार्टिंग का लिंक है, जो जिस लिंक पे क्लिक करके बच्चे ने एग्जाम शुरू करना है, वो लिंक मैं उसको 9:47-48 पे दूंगा। आप बच्चे को टेलीग्राम में वो लिंक जो है वो सिर्फ ग्रुप में लिंक जब डालेंगे वो 9:47-48 पे डालेंगे। बच्चे के पास जैसे ही लिंक जाएगा, बच्चा उस लिंक को ओपन करेगा, अपनी इनिशियल इंफॉर्मेशन भरेगा, ईमेल आईडी भरेगा, अपना नाम भरेगा, फादर का नाम भरेगा। इसमें 10-1 मिनट लगेंगे उसको। ऑलराइट, तो हम ये मानेंगे कि बच्चा 10-1 मिनट में भर के 10 बजे अपना टेस्ट शुरू कर देगा। गेटिंग? अब 11 बजे हम एग्जैक्टली 11 बजे फिनिश नहीं करेंगे, हम 11:10 पे बंद करेंगे इसको। देखिए 10 मिनट हमने पहले दे दिए सैल्यूटेशन के लिए, 5-10 मिनट हम बाद में देंगे, ताकि कोई अगर उसको किसी तरह का नेटवर्क एरर आया है या वैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि अभी हम ये शुरू कर रहे हैं तो 10 मिनट देंगे। हम 11:10 पे ये बंद करेंगे। तो कहां से बंद होगा ये? आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। हाँ जी, तो मैं अगर इसको डीसिलेक्ट कर दूंगा, मैंने मान लीजिए अब इसको डीसिलेक्ट कर दिया, तो अब इस टाइम के बाद किसी बच्चे का मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। समझ रही है बात को? यस सर। तो ऑटोमेटिकली अब बच्चा टेस्ट नहीं दे पाएगा और हम अपनी अटेंडेंस ले सकते हैं किस बच्चे ने टेस्ट दिया, किस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया। गेटिंग एवरीबॉडी? यस सर। अब मान लो आपने एक बच्चे को रिलैक्स करना है, एक बच्चे का फोन आ गया कि सर मैं बाहर था, टेस्ट देना चाहता हूं। आपको लगता है कि वो एक जेन्युइन केस है, आपको उस बच्चे ने कहा कि सर मैं मतलब टेस्ट देना चाहता हूं। अब वो बच्चा कहता है कि टेस्ट मैं सर दूंगा 3 बजे से लेके 4 बजे तक। आपको लगा कि वो केस जेन्युइन है, ठीक है? तो आप 3 बजे से पहले ये लिंक दोबारा खोल दोगे, 4 बजे इसको फिर बंद कर दोगे, ठीक है? अब आप कहोगे कि सर ये तो सबके लिए ओपन हो जाएगा। पहली बात तो जो बच्चे ने फोन किया है टाइमिंग का सिर्फ उसको पता है, एक चीज। दूसरी चीज, जो बच्चा एक बार दे चुका है टेस्ट, वो अपने मोबाइल से दोबारा दे ही नहीं सकता, वो भी गया चला, ठीक है? तीसरा, अगर इस बच्चे ने दूसरे बच्चे को बता दिया टाइम, जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया हुआ था, तो क्या करेंगे? अरे अगर कोई बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, वो इतनी मतलब एक तरह से स्पाई बना हुआ है कि कब रिस्पॉन्स ओपन होगा, कब मैं टेस्ट दूंगा, तो ऐसे बच्चा तो डिजर्व करता है कि वो टेस्ट दोबारा दे पाए। नहीं तो देने दो उसको फिर, ठीक है? पर एक चीज का याद, unit test ना, then how we can, because unit test we will have to take once only at one time. totally agree with you, एक ही बार लेना है। Short test तो we can give them. मैंने आपको ये कहा कि बहुत जेन्युइन केस कोई आपको लगे तो, Okay. हालांकि इसकी एक शॉर्टकमिंग भी है। और शॉर्टकमिंग क्या है? शॉर्टकमिंग ये है कि वो बच्चा किसी दूसरे बच्चे से आंसर पूछ के रख सकता है। So then we can tell him that yes, we can take your test again, but we will change your questions. हाँ, ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। We can change one or two questions from between. If yes. Four cases there, then we can change, because in school also, if we are taking unit test again, then we are changing the questions. Then we can change the question. All right, please hold on. ये जो I फिर जिनको कॉमर्स से मैंने फिर टेस्ट दिया बच्चे करना। मैं तो Zoom मीटिंग ले रहा हूँ, अभी बढ़िया से को बता देना कि टीचर्स की Zoom मीटिंग चल रही है। टीचर्स, एम आई ऑडिबल? आशा मैडम ने बिल्कुल सही कहा, हम 1-2 क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर के लिए अगर आप एक क्लास के एक बच्चे को
कोई टाइम दे रहे हो दोबारा टेस्ट कंडक्ट करने का, तो सेटिंग में देखो एक और ऑप्शन है, ये रही सेटिंग। सेटिंग में आप जाओगे, यहां पे प्रेजेंटेशन में मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करनी है आपने, बट अगर आप उसी क्लास के बच्चे को कोई डिफरेंट टाइम दे रहे हो, 2 क्वेश्चन आपने चेंज कर दिए और बाद में यहां पे क्लिक कर दो शफल क्वेश्चन ऑर्डर, उससे क्या होगा, हर एक क्वेश्चन जो है वो शफल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो टेस्ट वैसा लगेगा ही नहीं। मान लीजिए 30 क्वेश्चन का टेस्ट लिया आपने, you have taken the test of 30 questions, out of 30 questions change 5-6 questions, okay, not more than that, 5 questions sufficient. Then click on here setting option, click on setting option, then go to presentation. Remember that I told you earlier not to click any option in presentation, but now we need to click. We'll click on presentation. Here click on shuffle question order. Yes sir. This way question paper will not look like alike. Question paper will look like different, right? Yes. That's it. That was it. Now I'm going to tell you how to save the form, where to save the form, how to save the multiple forms, how to make the multiple forms. मैं अपनी लास्ट ऑप्शन पे आता हूं कि हमने ये फॉर्म कहां सेव करने हैं, मल्टीपल फॉर्म कैसे सेव करने हैं, वहां से कैसे हम इसको दोबारा जनरेट कर सकते हैं, हर बार जब भी डेस्कटॉप लैपटॉप ओपन करें तो कैसे हम वहां पे देख सकते हैं कि ये कहां पड़ा हुआ है। Now see everybody, here you are watching move to a folder, ये ऑप्शन सबको दिखाई दे रही है, मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं मूव टू फोल्डर, मैंने इस पे क्लिक किया मूव टू फोल्डर पे, तो ये अपने आप माई ड्राइव को ओपन करेगा। अब माई ड्राइव क्या चीज होती है, आप में से बहुतों ने यूज की है, बहुतों ने यूज नहीं की, बट जब भी आप कोई जीमेल अकाउंट बनाते हैं, गूगल जीमेल बनाते हैं आप कोई भी, तो आपकी ड्राइव ऑप्शन अपने आप एनेबल हो जाती है और उस एनेबल में आपके बहुत सारे जो फॉर्म, बहुत सारा डाटा है वो आपको पता भी नहीं रहता, बट वो उसमें जाता रहता है। और ड्राइव एक इसी तरह जैसे आपकी पेन ड्राइव है, ये 15 GB की होती है जो कंप्यूटर या मोबाइल में आपको गूगल मेल, जीमेल के द्वारा मिलती है। तो ये जितने भी फॉर्म क्रिएट होते हैं ये आपके जीमेल में जाते हैं, ये माई ड्राइव में जाते हैं, ये हर एक के मोबाइल पे, हर एक के डेस्कटॉप पे होती है अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है। और अगर आप कोई भी स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके पास गूगल का अकाउंट है ही है, क्योंकि प्ले स्टोर बगैर गूगल के अकाउंट के ओपन ही नहीं होता। तो ये टेंशन ना लें कि मेरे पास है कि नहीं है। अब माई ड्राइव में जाके आपने इस फॉर्म को सेव करना है, तो मेरी आपको राय है कि आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके अब हम इस फोल्डर को एक नाम देते हैं। ये हमारी फाइल है 9th क्लास SST, बट हम अब एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम रखेंगे। मान लीजिए मेरे इस फोल्डर का नाम है, कोई भी यूनिक सा नाम सजेस्ट करें, मान लीजिए RIS लिखा मैंने। RIS में आज 15 तारीख है तो मैंने लिख दिया 15 जून 2020, ठीक है। और मैंने लिख दिया यूनिटरी टेस्ट लिख दिया इसको, या RIS यूनिटरी टेस्ट कर दिया मैंने। RIS के बाद मैंने अपना नाम भी लिख दिया, कारण है कि ये मेरे द्वारा लिए जाने वाले सारे यूनिटरी टेस्ट हैं। RIS राजन यूनिटरी टेस्ट यहां पे कर दिया, ठीक है। और ये फोल्डर क्रिएट हो गया है गूगल ड्राइव में। आप अपने यूनिक फोल्डर नाम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे टिक किया, जैसे ही मैंने टिक किया हम उस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब इस फोल्डर के अंदर मान लीजिए मैं डिफरेंट क्लासेस को पढ़ा रहा हूं, मैं 6th को पढ़ा रहा हूं, 7th को पढ़ा रहा हूं, 8th को पढ़ा रहा हूं, 9th को पढ़ा रहा हूं, 10th को पढ़ा रहा हूं और डिफरेंट सब्जेक्ट से पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए ये 9th क्लास की सोशल स्टडी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं फिर एक फोल्डर को क्रिएट करूंगा। ये ऑप्शन आपके पास दोबारा है। अब फोल्डर में फोल्डर जनरेट हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको नाम दे दिया 9th सोशल स्टडी और मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब क्या हुआ, मेरा एक मेन फोल्डर है मेरे नाम का, यूनिटरी टेस्ट का, ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल का, उसमें 9th क्लास की सोशल स्टडी का एक फोल्डर है और उसमें मैं ये चाहता हूं कि ये फाइल जाके सेव हो जाए। तो अब मुझे फोल्डर नहीं बनाना,
मैं सीधा इस फाइल को यहाँ पे सेव करूंगा, मूव हियर पे क्लिक करूंगा। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, ये जो फाइल है 9th क्लास सोशल स्टडी हैज मूव्ड फ्रॉम माय ड्राइव टू 9th सोशल स्टडी, ये मेरी उस ड्राइव में चली गई है। ऑलराइट, ठीक है जी। अब मैंने इसको देखना है, मैं इसको देखूं कहां पे जाके? तो अपनी अपनी जीमेल ओपन कीजिए। जैसे ये मेरी जीमेल है, गूगल मेल सबकी बनी हुई है, सभी यूज करते हैं। तो मैं अपनी जीमेल में आ गया, ये जीमेल का प्रेफिक्स है, देखिएगा जरा। अब किसी के पास थोड़ी पुरानी जीमेल है तो ऑप्शन अलग जगह पे पड़ी होगी, किसी के पास नई जीमेल है तो ऑप्शन थोड़ी अलग जगह पे पड़ी होगी। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये वाली जगह पे देखिए आपको 9 सर्कल नजर आ रहे हैं गूगल एप्स वाले। सभी टीचर्स को विजिबल है? यस सर। गूगल ऐप पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखिए ड्राइव की ऑप्शन दिखाई दे रही है। ये है मेरा कर्सर, देखिए ध्यान से। सबको विजिबल है ये? यस सर। ये हर एक के मोबाइल या हर एक के डेस्कटॉप पे होती है। जिसका भी गूगल अकाउंट है उसकी ड्राइव ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और उसमें डाटा कुछ जाना शुरू हो जाता है और 15 GB का फ्री स्पेस मिलता है, जैसे हमारी पेन ड्राइव होती है। तो मैं गूगल को क्लिक कर रहा हूं, देखिएगा मैंने गूगल को क्लिक कर दिया है, ये गूगल ड्राइव को क्लिक कर दिया है, ये मेरी ड्राइव ओपन हो गई है। यस सर। My God. विजिबल है सबको अभी? यस सर। अब इसमें देखिए हमने एक फोल्डर बनाया था, आपको याद हो फोल्डर बनाया था ना? क्या नाम था फोल्डर? यस सर। RIS Rajan Unitary Test। तो ये फोल्डर यहाँ पड़ा हुआ है, आपको नजर आ गया सबको? ये रहा फोल्डर जो मैंने क्रिएट किया था फाइल को सेव करते हुए। मैंने इस पे डबल क्लिक किया, ये फोल्डर ओपन हो रहा है। उसके अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया था, यस 9 सोशल स्टडी। 9 सोशल स्टडी को मैंने ओपन कर दिया है। उसके अंदर हमारी गूगल फॉर्म की फाइल थी, ये रहा मेरा वो गूगल फॉर्म पड़ा हुआ यहाँ पे। यस सर। सबको विजिबल है? यस सर। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि हम मान लीजिए इस सेम गूगल फॉर्म को किसी दूसरे बच्चे को भेजना चाहते हैं, यहीं पे आप मेक एक कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, दूसरा गूगल फॉर्म बन जाएगा। यहीं पे बन गया है ना? यस सर। ये रहा कॉपी ऑफ 9th क्लास, ये मेरे कॉपी बनी है उस क्वेश्चन पेपर की। अब मैं इसको ओपन करके इसमें चेंजेस करके मैं उस स्टूडेंट को सेंड कर सकता हूं। मैं यहां से वापस जा रहा हूं एक बार, ये देखिए यहां से वापस जाते हैं और यहाँ पे आ गया हूं। अब मैं यहाँ पे एडवांस में भी फोल्डर क्रिएट करके रख सकता हूं। अपना बताना जरा, आप कौन कौन सी क्लासेस को ले रहे हैं? 9th सोशल स्टडी मान लीजिए, और कौन सी क्लास ले रहे हैं सर आप? 10th सोशल सर +1 इकोनॉमिक्स। चलिए मैंने मान लीजिए 10th सोशल स्टडी भी लिख दिया। मैं पहले ही इसको क्रिएट करके रख लेता हूं। ये वर्किंग लिखा आ रहा है नीचे, आप देखिए वर्किंग लिखा आ रहा है, इसका मतलब क्रिएट हो रहा है। ये बन गया 10th सोशल स्टडी का फॉर्मेट। मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर एक और क्रिएट कर देता हूँ। +1 का क्या लेते हैं सर आप? इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स। यस सर। मैं ये फोल्डर एडवांस में क्रिएट करके रख देता हूं, ठीक है। +2 की भी मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो मैं ये फोल्डर यहाँ पे एडवांस ही डाल देता हूं। न्यू पे क्लिक किया तो जो चीज न्यू बनाना चाहते हैं वो आ गई यहाँ पे। अगर फोल्डर बनाना चाहते हैं फोल्डर आ गया, फाइल अपलोड करना चाहते हैं फाइल आ गई। मैनी क्वेरी ऑफ योर्स? Sir, same that if copy of the question paper is done, after copy of the question paper, 4 or 5 questions are changed. After that, which pending questions are there? If I want to reshuffle it, or the whole paper I want to reshuffle, then I have to go in presentation. Is it? No, just then go I can shuffle. This is your, now watch it, please take the answer of your question. This is the drive. Okay. This is my drive.
in my Yes, drive, sir. I'm going to the created folder. This was my created folder. RIS Rajan Unity Test. Yeah, sir. In that, in 9th class we created. In 9th class we are going. That was the copy. This is the original one question paper. This is the copy one question paper. Getting? I am double clicking here. Yes, sir. When I do the double click, Okay. the form will be opened. When Yes. form is opened, you may change its name also if you want. Then like number 2 I can give here. Ma'am, you can write down here. Same name with the number two. Suppose you have given it to Raghav. You can write down Raghav here only so that you know that you send it to Raghav only. You want to send it to Raghav 9th class. Alright? Paper is same. Now you have changed this question. Which of the following is a democratic country? Suppose you have changed this question to which of the Which is not democratic country? yes. Alright. Here you have written none of the above. Getting? Yes. Now you want to send it to Raghav, just click on send. Hey, you want to shuffle Yes. the questions. Go on setting, go on presentation, click on shuffle question paper, click on Yes. save. Now click on send. So you want to send it to Raghav, go to the link, shorten URL, copy it, and send it to Raghav only. Like I'm sending it to you only, suppose. Got it, sir. Okay. The process is same. We can shuffle also if you. Yes, you can Thank shuffle. you, sir. Suppose this is there. So we are sending it to Raghav only. So I can just paste the link here, but you need to type the information. The shorten URL was perhaps not done. Copy. No problem, sir. I come to know the process. Now you need to type upper side Raghav's test or whatever you want to type, send it. The link is sent to you now. Okay. See, the link has gone to you. Now you can access it. Just to make me understand how to save this one as you did in this one Gmail account. Definitely. क्वेश्चन पेपर को एक बारी दोबारा सेव करना, इसी वाले को सेव करना सिखा दो सर. Yes, yes. See, I'm starting from the starting ones. I opened the new window. All right. Yes, I sir. click on Google Form. Yes sir. Press enter. The window is being opened. There the first context came, Google Form free online survey for personal use. In that Google Form is there, right? This one option. Sir, Get- this so I know. For saving I'm telling you, we have clicked here just. Yes sir. You will click on the go to Google Forms. We'll click on blank form. Got everybody? Yes sir. Main thing is there. Now check it. This is the description of the test and this is the file name. Yes sir. Okay. Suppose English. 9th GK you are taking, ma'am, but simply we are taking, right? Okay sir. 9th GK. Getting? Here
By default, 9 GK will come, but we'll write down here Rigveda International School. Okay. Here form description, unitary test, ninth GK, marks suppose 4, right? Okay, sir. In the setting. Now, let us check in the setting which options are to be picked. We'll do it in advance. This is setting. We'll click on setting. In setting, first of all, general. This is to be ticked. This has to be ticked. This is to be ticked. Please take care of this. Require the setting. Limit to 1 response. This is to be ticked. This is to be ticked. This is to be ticked. Presentation. No tick. No tick. Quizzes. Necessary to enable. Enable it. Mandatory. Click on saving. Save. Now we'll go for the questions and so on. Untitled question. We have managed any question here. The first question will write down student's name. Student's name. Instead of multiple choice question, we'll select a short answer. From here, we'll go for the next question. Suppose our first question is, how many eyes do you have? How many eyes do you have? This is the GK question. Very difficult, I know. Option. According to your eyes, you will give the answer. Everybody. 1, 2, 3, 4. We need to generate the answer key. We'll click on the answer key. ये आंसर की वाली ऑप्शन नहीं आएगी जब तक सेटिंग पे जाके आप क्विज़ेस को एनेबल नहीं करेंगे. याद रखो, सेटिंग में क्विज को जाके एनेबल करेंगे तभी आंसर की ऑप्शन आएगी. अब आंसर की पे क्लिक करो. जो इसका सही आंसर है अब अपने अपने ढंग से देख सकते हैं. तो 2 मार्क्स कर दिया. ये डन कर दिया हमने. हमारा क्वेश्चन पेपर रेडी हो गया है विद आंसर शीट. यहाँ पे देखिए ऊपर स्कूल का नाम आ गया, यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई टेस्ट की, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम की इंफॉर्मेशन जो हमने लेनी थी वो आ गई सारी. ये क्वेश्चन पेपर जनरेट हो गया. आंसर की जनरेट हो चुकी है. आंसर की देखिए यहाँ पे टिक आ रहा है. तो ये हमारा पेपर बन चुका है. और रिक्वायर्ड ऑप्शन हमने सिलेक्ट करनी है. बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड सिलेक्ट होती है, बट हमने रिक्वायर्ड सिलेक्ट करनी है. अगर ये नहीं सिलेक्ट है तो इससे जो क्वेश्चन होगा वो मैंडेटरी बन जाएगा और ये रेड स्टार आ जाएगा. जैसे यहाँ पे रेड स्टार है, इसका मतलब कि हमें ये अटैच करना जरूरी है. देखो यहाँ पे रेड स्टार आ गया. अब मेरा क्वेश्चन पेपर रेडी है. अब मैंने इसको अट्रैक्टिव बनाना है. तो देन आई क्लिक ऑन द कस्टमाइज थीम. कस्टमाइज थीम में चूज इमेज. चूज इमेज में कोई भी पहली पिक हम ले लेंगे. जो भी पिक यहाँ पे पहली आएगी, मान लीजिए ये 3rd पिक हमने सिलेक्ट कर ली है. नाइस पिक सर. कुछ सेकंड लेगा. ये देखिए पिक सिलेक्ट हो गई है. उसके बाद हम इसको क्रॉस कर देंगे. ठीक है. तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रेडी है भेजने के लिए. आपने इसको भेजना है सेंड करके. सेंड करके यहाँ पे 3 ऑप्शंस है. सेंड वाया. आपने ईमेल से नहीं भेजना. ये देखिए ईमेल आ रहा है. ईमेल से नहीं भेजना, हमें लिंक से भेजना है. ये सेंट्रल ऑप्शन है. हम लिंक पे क्लिक करेंगे. लिंक जनरेट हो गया. और उसके बाद शॉर्टन यूआरएल कर देंगे. छोटी यूआरएल, शॉर्टन यूआरएल की. तो ये बन गया. हमने इस लिंक को कॉपी किया. कॉपी करके एक बार व्हाट्सएप पे हम कुछ भी कहीं भी डाल सकते हैं. जैसे मैंने अपने व्हाट्सएप पे एक करेक्शन ऋग्वेदा के नाम से बनाया हुआ है कि जो भी मैं एक बार पहले डिजाइन करता हूं वो करेक्शन में डाल देता हूं. ऑलराइट. तो उससे मैं फिर उठा के कहीं भी और ले जाता हूं. बट मान लीजिए मैं इसको सीधा स्टाफ में डाल रहा हूं आपके पास. यस. ये पेपर सीधा स्टाफ ग्रुप में आ रहा है. स्टाफ में मैंने इसको पेस्ट कर दिया लिंक को. ठीक है. यस सर.
ये जीके का टेस्ट 2 मार्क्स का था, ये 9th क्लास का टेस्ट था, और जीके का टेस्ट तो ये आपको लिंक विजिबल हो गया है सबको, ठीक है, आपको ये चला गया है टेस्ट। अब बात थी सेविंग की, क्वेश्चन था सेविंग का। मेरे पास ये फाइल यहाँ पे पड़ी है, जैसे हम MS वर्ड बनाते हैं, 9th जीके यहाँ पे ये फाइल खुली हुई है, अभी ये फाइल सेव नहीं हुई, हमने इसको प्रॉपर सेव करना है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ ही एक फोल्डर ऑप्शन बना हुआ है, मैं फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूं। यस फोल्डर पे देखिए मैंने एक फोल्डर अपने नाम का क्रिएट किया था, RIS राजन यूनिटरी टेस्ट किया था, सब है ना आपके ध्यान में है। पर मान लीजिए हाँ जी सर, मैं अब डिफरेंट हूँ, मैं मीनाक्षी मैडम के बिहाफ पे सेव कर रहा हूँ, तो मीनाक्षी मैडम अब यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर का नाम रखेंगे RIS मीनाक्षी यूनिटरी टेस्ट जून 2020। ऑलराइट, RIS इंटरनेशनल स्कूल, इंडिविजुअल का नाम आ गया, यूनिटरी टेस्ट हो गया, और किस मंथ में लिया वो आ गया। अब इसमें मैडम काफी क्लासेस पढ़ा रहे होंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक और फोल्डर का, जो मीनाक्षी मैडम के फोल्डर के अंदर चला जाएगा। उसके अंदर मैंने एक फोल्डर और बना रहा हूं जिसमें मैं क्लासेस लिख दूंगा। जैसे मैंने ये फोल्डर पे क्लिक किया, ये टिक करना मत भूलिएगा, पहले यहाँ पे टिक किया, ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हो रहा है, वो है 9th जीके का, 9th जीके। यहाँ पे मैंने टिक किया, ये 9th क्रिएट हो गया, और ये फाइल जो थी 9th जीके में यहाँ पे मूव करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे और लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो फाइल बाय डिफॉल्ट ही पता है कि इस फोल्डर के अंदर वो फाइल जाएगी। तो मैं मूव हियर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब वो फाइल जो है वो मेरे ड्राइव में जा चुकी है। अब देखना है कि मेरी ड्राइव होती कहां पे है कंप्यूटर में, तो उसके लिए मुझे अपना जीमेल ओपन करना पड़ेगा। मैंने अपना जीमेल ओपन किया, जीमेल में ये आप सबको 9 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, गूगल एप्स यहाँ पे ऑप्शन आती है, मैंने वहां पे क्लिक किया, वहां जाके मैंने अपनी ड्राइव पे क्लिक किया, और ड्राइव में देखिए ये फोल्डर बन गया, RIS मीनाक्षी यूनिटरी टेस्ट, और आगे जून वगैरह लिखा होगा। इसको डबल क्लिक कर रहा हूं, इसके अंदर एक और फोल्डर है 9th जीके का, यहीं पे सारी क्लासेस के फोल्डर हम रख सकते हैं। तो 9th जीके का फोल्डर मैंने क्लिक किया, तो ये मेरा फॉर्म यहाँ पे पड़ा है, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ इसको फॉर्म को, ठीक है। मैं एडवांस में फोल्डर बना के रख सकता हूं, मैं सेव करते हुए फोल्डर का नाम कर रख सकता हूं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं यहीं पे इसको राइट क्लिक कर रहा हूं, इसके ऊपर रख के पहले इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए बाहर है तो ये डीसिलेक्ट है, यहाँ पे ब्लू नहीं है, यहाँ पे ब्लू नहीं है, ये व्हाइट है। और जैसे ही मैं इसके अंदर कहीं पे क्लिक करता हूँ इसको, तो ये ब्लूइश हो गया है, इसका मतलब ये सिलेक्ट है। जब ये सिलेक्ट है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेक ए कॉपी की ऑप्शन आ रही है। यस सर, मैं क्लिक करूंगा मेक ए कॉपी की ऑप्शन, ये नीचे आ गई ऑप्शन क्रिएटिंग कॉपी। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ऑनलाइन बनता है ये। यस सर, ये बन चुका है कॉपी ऑफ 9th जीके। यस सर, ठीक है, मैं यहीं से इसको चाहूं तो रीनेम भी कर सकता हूं अगर ऑप्शन हुई तो। ये रही रीनेम की ऑप्शन। अब मैंने इसको भेजना है, मान लीजिए मोहित को भेजना है। यस सर, मैं इसका नाम रीनेम कर दूंगा कि ये मोहित को भेजा जाने वाला टेस्ट है। यस सर, तो रीनेम हो चुका है मोहित। मैं इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूं। ये ओपन हो चुका है, ये देखिए ये आ गया मोहित 9th जीके का आ गया। अभी हमें पता है कि सब मोहित को भेजे जाने वाला टेस्ट है ये। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन चेंज कर देता हूं,
मैं अब ये क्वेश्चन मैंने डालना था, हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। और मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाके स्पेशली मोहित के लिए प्रेजेंटेशन के अंदर जाके मैं शफल क्वेश्चन ऑर्डर कर दूंगा। यस सर। अब सारे क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो दिखने में ये नया पेपर लगने लगेगा। तो सेव किया, अब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके, यस पे क्लिक करके, शॉर्टन यूआरएल करके, लिंक को कॉपी करके मोहित को भेज दो। और मैं सिर्फ यहां से मोहित को भेज दूंगा। राइट सर। राइट जी, यस सर। ये आ गए हैं मोहित जी, सीपी वाले, तो भेज सकते हैं यहाँ पे। राइट, चलिए that's it। अब आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी टीचर की, आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। स्कूल में जब मर्जी इंडिविजुअल आके आप बात कर सकते हैं। अब आपको डेट शीट जाएगी, डेट शीट के साथ आपको मार्किंग स्कीम चली जाएगी कि कितने क्वेश्चन बनाएंगे, साथ में टाइमिंग चला जाएगा। तो आपने वो जो सारी चीजें वो ध्यान रखना है। याद रहे, हमने अगर 10 से 11 टेस्ट लेना है तो 9:45 बजे हम उसको लिंक भेजेंगे, पेपर का होना ये एडवांस में भेज देंगे, और 11 से हम ये एक्टिविटी एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस को बंद कर देंगे।